All right, everybody, this is an IGCSE paper and it is from the May-June 2023 examination. The paper is of 130 marks. We know that now the syllabus has changed and the paper will be of 100 marks for the calculator version paper. Okay? So all of you are requested to have your calculator with you. Okay? And you will be solving the paper with me. This paper will have a lot of easy questions, but a lot of tricky questions as well. Try to attempt each and every question very carefully and read the question once you're done with a specific question. जब आप क्वेश्चन कर लें तो उसी वक्त उसको गो थ्रू करें, क्योंकि पेपर के एंड में आपकी एनर्जी जो होती है ना वो ड्रेन होती है, आप पूरा पेपर जो है रिवाइज नहीं कर सकते. ठीक है, डू मेक श्योर ऑन दिस थिंग. चलें जी, स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 देख लें बेटा. क्वेश्चन नंबर 1 देखें जरा बेटा. एक बच्चा रामीन, जरा तुम्हारे पास पेपर नहीं है तो तुम कैलकुलेटर लेके बैठ जाओ. अच्छा सर. हाँ जी, ओके. The diagram shows an isosceles triangle with the base extended. Okay, they say that this is an isosceles triangle. Isosceles triangle का मतलब ये है कि these two angles will be same. तो वहां पे y लिखा हुआ है तो मैंने यहाँ पे x लिखा है तो मैंने यहाँ पे y लिख दिया है. We got the idea that sum of the total angle in the triangle is equals to 180 degree. Why these two angles are y? Because isosceles triangle में two angles are same. So I can write that y plus 42, it should be equals to 180 degree. So 2y plus 42 is equals to 180. So 2y is equals to 180 minus 42. And 2y is equals to 180 minus 42 is how much? 180 minus 42 is 138. And 138 divided by 2 would be the value of y. So y is equals to 138 divided by 2. So 138 divided by 2 is how much? 69. It is equals to 69. It is equals to 69. So the value of y is equals to 69. Now I'm finding x. So x would be equals to 180 minus y. So 180 minus 69 is 100 and 111. G. 111. Okay, it's 111. So the value of x is 111 for 3 marks. It was easy question, line and a triangle angle only. तो ये polygon के topic का question है. ठीक है? Understood everybody or not? And there is also one more thing where there is a theorem here that this is exterior angle. This is exterior angle extended with the line. So the value of this angle, it should be equals to 42 plus y. तो अगर आप 42 के साथ 69 को add करो तब भी आपके पास 111 आ जाएगा. Okay, so that is also an alternate way to solve this question. Whatever the theorem you are solving, just be confident on it. Okay, proceeding to question number part B. The diagram shows 3 lines meeting at a point. A ratio B ratio C is 3 ratio 4 ratio 5. We got the idea that angle at a point is how much? Angle at a point is total 360 degrees. So we got the idea that A plus B plus C should be equal to 360 degree. I got here one thing, that A is 3 pieces, B is 4 pieces, and C is 5 pieces. So there are how many pieces in total? Total कितने pieces हैं बेटा? टोटल पीसेस आपके कितने हैं? आप जरा पीसेस टोटल देख लो. ठीक है, अयान प्लीज टर्न ऑफ योर कैमरा यार. ये आते वक्त क्लास में वो करा करो, मैं पाबंदियां लगा दूं अब क्या? ओके, now you can see one thing, that there are total how many pieces? 5 plus 4 9, 9 plus 3 12 pieces. So I got the idea that 360 should be divided by 12. 360 should be divided by 12. So what is 360 divided by 12? Is 30 degrees. Agree? The examiner is asking me find the value of C. So the value of C is what? C is 5 pieces according to the question. You can see the arrow here. C is 5 pieces. 5 times 30 is 150. तो वो आ गया बेटा 150. इसका एक ऑल्टरनेट तरीका भी है. बाद बच्चे ऐसे भी करते हैं कि C निकालने के लिए वो करेंगे कि C का पार्ट है 5, पार्ट डिवाइड बाय टोटल कितने हैं आपके पास? टोटल हैं 12, मल्टीप्लाई विद 360 करें आपके पास, तब भी आंसर जो है वो आएगा 150 ही. ओके, 12 1s are 12, 12 3s are 30, तो 5 into 30 is 150. तो दोनों में से जो तरीका आपको इजी लगे आप वो तरीका फॉलो करें पेपर में जी. 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था, पॉलीगॉन से आया था क्वेश्चन जी. क्लियर है बेटा सबको? यस और नो? यस सर. ऑलराइट, आगे चलते जी हैं. सर बिल्कुल. क्वेश्चन नंबर पार्ट सी. उसका पार्ट सी क्या कहता है? अ रेगुलर पेंटागन हैज एन एक्सटीरियर एंगल डी. ओके, पेंटागन मींस 5 साइडेड. ओके, and a regular hexagon has an interior angle h. Hexagon means 6 sided.
A regular pentagon has an exterior angle. तो पहले क्वेश्चन के दो पीसेज हैं. n is equals to 5 का एक्सटीरियर निकालना है. तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय n. सो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय 5. बेटा 360 डिवाइडेड बाय 5 क्या होता है? 70. इट्स 72. ओके, तो इसका मतलब है कि d से डिनोट किया है, तो d इज इक्वल टू 72 डिग्री. d की वैल्यू क्या आई है बेटा यमुना? 72 डिग्री. एग्री? फिर वो कहता है अ रेगुलर हेक्सागोन हैज एन इंटीरियर एंगल h. तो इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या है? n minus 2 into 180 divided by n. That is what the interior angle formula is. n की जगह पे 6 डाल दें. 6 minus 2 into 180 divided by 6. 6 minus 2 is 4. 4 into 180 divided by 6. 4 into 180 is 720. 720 divided by 6 is how much? 120. 120. तो 120 is the interior angle and it is mentioned as h. तो ये हो गया बेटा 120. अब वो क्या कहता है? फाइंड द फ्रैक्शन d by h. तो d by h लिखना है. d की वैल्यू है 72 और ये आ गया 120. अब वो कह रहा है कि गिव योर आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म. तो इसको कटिंग करनी जरूरी है. अगर कटिंग नहीं की तो एक नंबर कटेगा. हाफ ऑफ 72 इज 36. हाफ ऑफ 120 इज 60. 36 और 60 भी हाफ होता है, वो हो जाएगा 18 by 30. 18 by 30 भी हाफ होता है, विच इज 9 by 15. अब 9 by 15 टेबल 3 में कटता है, तो विच इज 3 3s are 9 and 3 5s are 15. So the final answer is 3 by 5. Any problem? Any problem so far? Ayla, Hassan, Tayyiba? No, Arun? sir. No, sir. All right, proceeding. Part D, they say that show that PQRS is a cyclic chord. Cyclic chord, there is a property that the sum of the opposite two angles, it should be equals to 180 degree. So I got the idea that this angle is opposite to this one and this angle is opposite to this one. So they both should be equals to 180 degrees. So it means that they both should be equals to 180 degrees. That is what the cyclic chord property is. So I can write here one thing, that x plus 3x minus 40, it should be equals to 180. Let's see. Other side should be 2x minus 5 plus x plus 20. It should be equals to 180 degree. Let's find out x on both sides. If we got the same value of x on both sides, so then our answer is fine. So x plus 3x is 4x. Minus 40 will go there. So 180 plus 40. So 180 plus 40 is 220. Divided by 4 on both sides. So 220 divided by 4. बेटा calculator is allowed. तो मुझे बताओ 220 by 4 क्या आता है? 55. 55. Let's see right side पे क्या होता है. 2x plus x is 3x. Minus 5 plus 20 is plus 15 is equals to 180. 15 वहां पे जाके बेटा माइनस होगा, तो 180 minus 15. 3x is equals to 165. Divided by 3 on both sides. जरा 165 को 3 पे डिवाइड करें, क्या आता है? 55. 55. We got the same answer for x from both sides. So show that it means that it's cyclic chord. Cyclic chord. Now we got the value of x. Now let's put them. अगर put करना चाहते हैं तो जरा और भी अच्छा हो जाएगा. जरा working examiner को पसंद आती है, तो हमें जरा x को put करना है and it should be equals to 180 degree. And on the left side you can see one thing, Ayan, that I have this equation, and on the right side I have this equation. So I will replace x with 55. Let's see what happens. So 55 plus 3 into 55 minus 40. See, it should be equals to 180. क्या यहाँ पे 180 आ रहा है आंसर? चेक कर लें बेटा. कैलकुलेटर है ना आपके पास. 55 plus 3 bracket 55 bracket close minus 40 करें, क्या आ रहा है? 2 into 55 minus 5 plus 55 plus 20 is equals to 180. क्या ये आ रहा है कि नहीं? जी sir. दोनों आ रहे होंगे, तो it's shown. The result is shown. And remember that examiner marking scheme में बार बार लिखता है that you have to be very much careful about show that questions. You cannot skip any single step. आप इसको skip नहीं कर सकते. Understood everybody or not? Understood? जी sir. All right, proceeding. चलें जी, साथ साथ चलते हैं. आप लोग साथ साथ नोट्स ना भी करें तो बेहतर है. अगर मेरे साथ साथ लिख रहे हैं तो बहुत बेहतर है, अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो. लेकिन कोशिश करें कि मेरी पेज के साथ अपनी पेज को सेट करें ताकि हमारा पेपर जो है ना वो खत्म हो जाया करे. ओके, पार्ट ई देखें बेटा.
The diagram shows a circle of a radius 9 centimeter, center O. The minor sector AOB. बेटा minor sector किसे कहते हैं? Minor sector इसको कहते हैं बेटा, ठीक है साइन. This is removed from the circle. इसको सर्कल से काट दिया गया है, मतलब इतना पिज्जा स्लाइस आपने और मैंने खा लिया, ठीक है. ये बाकी बच गया व्हाइट पीस. Calculate the length of the major arc. Requirement of the question is finding this thingy. Okay. Now we know this already. मुईज हमें पता है कि दिस एंगल, ये एंगल कितना होगा. लेट्स सपोज दिस एंगल इज x. तो x कितना होगा बेटा? 360 में से 50 को माइनस करो तो 310 आ जाएगा. आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या है? आर्क लेंथ क्या है बेटा? थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई विद 2 पाई आर. थीटा की वैल्यू आपके पास 310 आई है. 310 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई विद 2 पाई एंड द रेडियस इज 9. अब कैलकुलेटर का गेम है, सारी वैल्यू कैलकुलेटर में डालो एंड जस्ट गिव मी द आंसर. डोंट गिव मी द आंसर इन टर्म्स ऑफ डेसिमल्स. फ्रैक्शन में आ रहा हो तो वो बताना पहले जी. रामीन, मैंने तुम्हें कैलकुलेटर पे बिठाया हुआ वैसे. 31 सर divided by 48.69. हाँ जी, क्या आ रहा है बताइएगा जी, जरा दोबारा बताइएगा. माइक ऑन करने की रिक्वेस्ट ना करनी पड़े रामीन. सर 48.69. 48.69. यमुना, आपने कुछ और आंसर बताया मुझे. सर वो आपने कहा था ना फ्रैक्शन में तो मैं अच्छा, अब आपने 48.69 लिख लिया. यू कैन नॉट राउंड ऑफ द आंसर राइट हियर. आप आंसर लाइन पे राउंड ऑफ करो तो 48.7 होगा. लेंथ है तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आप इसको राउंड ऑफ करोगे, ठीक है. 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. 3 significant figures. Don't skip any working. 3 marks for that. सर 48.701 आ रही है. अयान कहता है बेटा कैलकुलेटर रीसेट करके देखो अपना जरा तुम. क्या नाम है रामीन, आपने बिल्कुल एग्जैक्ट यही डाला था. जी सर. दोबारा जरा चेक कर लें आप, क्योंकि अयान इज आल्सो कॉन्फिडेंट दैट ही डिड इट ट्वाइस. 48.69 इज हसन्स आंसर. तो अयान आपका गलत है. अयान आप चेक करोगे आपने क्या गलती की, ठीक है. चलें जी आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 एवरीडे मैथ्स. ऐसे पोर्शन में आपका एक नंबर भी नहीं कटना चाहिए. की वन थिंग इन माइंड, आपका एक नंबर भी ऐसे पोर्शन में नहीं कटना चाहिए. ये मेरी बात हमेशा समझ डाल लें थोड़ा सा, ठीक है. ये मेरी बात आप हमेशा के लिए समझ डाल लें कि ऐसे क्वेश्चन में आपका एक नंबर भी नहीं कटना चाहिए. ओके. क्या हुआ है भाई? अनिल चेंजेस $830 into euros when the exchange rate is €1 to 1.16. डोंट रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन, आप पहले इसको कन्वर्ट कर लो, ठीक है. अगली लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं फिलहाल के लिए. सो द स्केल इज रामीन, इट्स यूरो एंड दिस इज डॉलर, ठीक है. ओके. Amanish, €1, it is equals to $1.16. He changed how much? He changed $830 into euros. So this is 830 and that area would be X. Now you're just simply cross multiplying. So 1.16X is equals to 830. So X is equals to 830 by 1.16. So how much euros beta? Sir 715.15. He has 715.51. 51. आगे बताओ एक दो डिजिट और भी. 724. तो 7 लिख देते हैं, ठीक है. दिस मच यूरोज, ही हैज दिस मच यूरोज. ओके. नाउ ही स्पेंड 500 यूरोज. उसने 500 यूरोज स्पेंड किए. ही देन चेंजेस द रिमेनिंग मनी. सो लेट्स फाइंड आउट द रिमेनिंग कितने रह गए. ही हैड 715.517 माइनस 500 यूरोज. तो आंसर माइनस 500 करें कैलकुलेटर के ऊपर. तो आंसर माइनस 500 इज 215.5. अंडरस्टूड एवरीबॉडी और नॉट? Into the, and he is going to convert these euros back to dollars. So let's use the scale one more time. तो हमें scale दोबारा लिखना है. That €1 it is equals to $1.16. So now he has 215.517 euros and he wants to convert it back to the dollars. So now just multiply your answer with 1.16. That's it. Cross multiplication. So 215.517 multiply with 1.16. So just tell me what is the answer. Sir 249.99. Okay, can you please repeat 249? 0.99. 999 के बाद कुछ नहीं है ना? नहीं है, फिर 9 Okay. है और फिर 72 है.
अच्छा मेरी बात सुने, अब एक याद रखें, वो कहता है, अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर आंसर में क्या लिखें। वर्क आउट हाउ मच इन डॉलर्स अनिल रिसीव्स, कि उसको डॉलर्स में कितने पैसे मिले हैं, उन्होंने सेंट का कोई जिक्र नहीं किया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में आप इसको, अगर आप आंसर लाइन पे लिखते हो ना, तो ये दो चीजें लिखते हो, लेट सपोज ऐसे कि 249.9 और 250, तो बस बचत हो जाती है, ठीक है। नहीं कि आपने फौरन से उसको 0.9 लिखा हुआ था और साथ ही 250 दोनों लिख दिया, कोई बात नहीं। 249.99 भी लिखोगे तब भी पूरा 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 नंबर मिलेगा आपको, अंडरस्टूड। चले जी, इन 2021 परसेंटेजेस का गेम है, तो काइंडली गौर करना, अच्छा ठीक है। बड़ी XYZ टेक्निक चल रही है आजकल इंटरनेट के ऊपर, मैं देख रहा हूँ बच्चों को, कोशिश करें रटा ना लगाएं, समझ थोड़ा सा। इन 2021 अनिल अर्न्स $37,000. He spent 12,400 on his bills in 2021. Calculate the percentage of his earning he spent on bill. तो हमें परसेंटेज बिल निकालनी है, परसेंटेज बिल। तो परसेंटेज बिल शुड बी बिल डिवाइडेड बाय टोटल अर्निंग मल्टीप्लाई विद 100, दैट वुड बी द फॉर्मूला। तो बिल क्या है बेटा, 12,400, टोटल कमाई थी 37,000, मल्टीप्लाई विद 100, दो जीरो यहाँ पे काट दिए, एक जीरो ऊपर काट दिया, मतलब आप हमने क्या करना है, 1240 को डिवाइड करना है 37 पे। जस्ट टेल मी 1240 डिवाइड बाय 7 इज 37 इज हाउ मच? Sir, 33.51. So the answer is 33.51. So I'm writing 33.5%. Any problem, anyone so far? Very good, very good, very good. Good job, good job. Question 2 में पहुंच गए हैं. Very good. In just 16 minutes. Very good. Okay, next part. His earning of 37,000 increased by 3.2% in 2022. 2 साल थे रामीन, 2021 2022. ओके, यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स को, ठीक है। 2021 में his earning was 37,000. In 2022 his earning increased by 3.2%. We doesn't know that what is the total earning, so I got the idea that this is my x. Okay, old is always 100%, but now in 2022 he will get the 100% of 2021 along with 3.2% extra, so he will be having 103.2%. That's it. दूसरा तरीका क्या है कि 3.2% निकाल लो और उसको ऐड कर दो उसके साथ, ये अल्टरनेट मेथड है, ये शॉर्टकट है जो मैं सिखा रहा हूं। गौर करें जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 100% ऑफ x वुड बी x, आई नो दैट। 37,000 को जस्ट मल्टीप्लाई करें 103.2% से, लेकिन कैलकुलेटर में परसेंटेज का साइन डालना मत भूलना। चलें जी, हाउ मच इज द टोटल अर्निंग? 37,000 से आंसर ज्यादा होना चाहिए जी। अवनीश, लालूना, तैयबा, It's 38184. 38 184. it's 184, 38,184, 2 marks. Got it everybody? Got it? Yes, sir. Yes, sir. All right, challenge. Proceeding. Part C. Anil invests $3,500 in an account that pays a rate of 22.4% per year compound interest. जैसे ही compound interest देखो, पहले आप इसका फॉर्मूला लिख लेना कोने में, that f is equals to p bracket 1 plus r% power t. That is what the compound interest formula is. He is investing 3,500, so which is my p, this is my r. Calculate the total interest earned. So I will find out the future amount and then I will subtract my principal amount and then I will get the interest in from this question. So this is t, which is 5 years. Sir, is there any mark for just writing raw formula? No. बेटा मैट्रिक तो नहीं है, तो फ्यूचर अमाउंट इज इक्वल टू 3,500 ब्रैकेट 1 प्लस r% विच इज 2.4%, पावर टी क्या है बेटा 5, f इज इक्वल टू 3,500 जी, मल्टीप्लाई करें जी, 1 प्लस 2.4% पावर 5, सॉरी ओके। चले जी, मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आ रहा है बेटा बताइएगा? 3940.64. 3940 .6496. 6496. Thank you so much. Now this is my future amount. He's asking about the interest. Interest is the difference. So just write, आप कैलकुलेटर पे करो, आंसर माइनस
आंसर माइनस 3500, ताकि इंटरेस्ट मेरे पास एक्यूरेट आए। माइनस कर लें भी, फिर 440.64. 440.6496, agree? Now the answer should be in 3 significant figures. 3 significant figure पे आंसर देना चाहिए हम लोगों को। तो थर्ड significant figure is 0 and after 0 we have 6, तो हम लिख देंगे 441 is the interest। और ये, लेकिन ये आंसर एग्जामिनर को जरूर शो करें, ठीक है? बाज़ औक़ात मार्किंग स्कीम में दोनों आंसर्स लिखे होते हैं, ये भी लिखा होता है और ये भी लिखा होता है। व्हाट हैपेंस कि अगर आपने गलती से शुरू में ही 5 की बजाय 4 लिख दिया और सारा क्वेश्चन आपने ठीक किया है, आपको पता है एग्जामिनर आपको 0 मार्क्स नहीं देगा, आपको 2 मार्क्स दे देगा, 1 नंबर काटेगा मिस रीड के लिए। ओके, इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. Find the number of complete years before Anil has at least 5,000 in his account. I got the idea that after 5 he is not touching 5,000, so let's try after 10। अब 10 के ऊपर ट्रायल एंड एरर मेथड है, ये ट्रायल एंड एरर ठीक है? ट्रायल एंड एरर मेथड करेंगे हम लोग कि वो 5,000 एटलीस्ट हो जाए। So let's try f is equals to 3500 bracket 1 plus 2.4% power 10। power 10 पे बेटा आंसर क्या आ रहा है बेटा, बताइएगा जरा प्लीज। 4436.777. कैन यू प्लीज बीट 44? 36.777. ओके, अब ऐसा करें 15 पे चेक करें बेटा, 15 पे एडिट कर लें, कैलकुलेटर में सिर्फ एडिटिंग करें, 10 को रिप्लेस करें 15 के साथ। Sir? 4995. जी बच्चा, एक बच्चे ने माइक ऑन किया, जरा प्लीज मुझे सुनने दें। तो इस ट्रायल एंड एरर पे 3 मार्क्स देते हैं ये लोग? जी बिल्कुल देते हैं, बिल्कुल, क्यों नहीं देंगे आपको ट्रायल एंड एरर पे, मैं तो। ओके। अच्छा जी, बताइएगा 15 पे आंसर क्या आ रहा है? 4995.366. 4995. 366.922. ओके, दैट्स इट, काफी हो गया। अभी भी एटलीस्ट 5,000 नहीं हुए, 16 चेक करें, हो जाएगा इंशाल्लाह। 5115. एक मिनट, अच्छा 2.4% पावर 16, अच्छा 5 115.255. 0.2 5573. 557. Okay, so we can see one thing. The question asked, find the number of complete year before Anil has at least 5,000 in this account. So he will be having at least 5,000 in his account after 16 years. So that is what 16 is your final answer. I don't know why there is a problem here, because few teachers on internet, they are solving the same particular question with a logarithm. Agree? Yes, sir. Now remember one thing, logarithm is not in the syllabus of O levels, IGCSE, ADMATS. Okay, ADMATS में है लेकिन इसमें नहीं है. Okay? Okay, sir. तो वहां पे मार्किंग स्कीम में भी लिखा होता है ट्रायल एंड एरर मेथड स्टूडेंट ने अप्लाई करना होता है इस क्वेश्चन में, ठीक है? तो जब लॉगरिथम आपके कोर्स में ही नहीं है, तो लॉगरिथम के जरिए जब आप क्वेश्चन वीडियो देखते हो ना इंटरनेट पे, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यार ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है, तो ये कैसे हो रहा है, ठीक है? Okay, sir. आगे चलते हैं जी बेटा। तो जरूरी है कि सारे डेसिमल प्लेसेस लिख के? यार ये एक्चुअली इस तरह है ना, ये मैं अपने बच्चों को तैयारी कर रहा हूँ कैम्ब्रिज एग्जाम के लिए, ठीक है? जब तक आपका फाइनल आंसर नहीं आता, कोशिश करें 2-2 3-3 डेसिमल लिखते रहें, ठीक है? ताकि वो गलती ना हो, ठीक है? ठीक है, ठीक है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे क्यों लिखा, ताकि मेरे पास ये आंसर एक्यूरेट आए और जब मैं राउंड ऑफ करूं तो आंसर ठीक आ रहा हो, ठीक है? ओके सर। चलें आगे चलते हैं जी। Algebra and equation making. So let's see question number 3. The diagram shows a right angle triangle and the area of the triangle is given to you, which is 60. Area of a right angle triangle is 1/2 into base into height. That is what the formula is. और पेपर में भी available होगा. So area of the triangle is 60. 1/2. Base is 2x plus 5 and the height is x plus 3. So that is what the equation is. 2 वहां पे जाके 60 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 120। यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 ब्रैकेट्स, तो यहाँ पे प्लीज बी केयरफुल, यहाँ पे खाली करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी। तो ये हो जाएगा बेटा 2x स्क्वायर, 2x इंटू 3 is 6x प्लस 5x प्लस 15। अब 120 को राइट साइड पे ले जाओ तो यहाँ पे 0 रह जाएगा, तो 2x स्क्वायर 6x प्लस 5x is 11x प्लस 15 माइनस 120, 0 is equals to 2x square plus 11x minus 105, and that is what the answer is. So it is shown. Please show that के क्वेश्चंस में गलती नहीं करना, एग्जामिनर रिपोर्ट में लिखा होता है कि show that में आपने कोई स्टेप स्किप नहीं करना, ठीक है? You have to get the answer this way. Get it?
Got it? Yes, sir. One common mistake in so that question is, Ramin, that you see one thing here, that area is 60 students. What they do, they write 1/2 base into height, agree, and that equals to 60. Get it? जी सर. अब वहां पे क्या है, ये तो वही चीज हो गई, एग्री. लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जी हम लोग ये 2x² + 11x - 105, तो इस इक्वेशन को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और x के आंसर्स निकालते हैं. ये गलत चीज है. आपने पहले इस इक्वेशन को डिराइव करना है. यू कैन नॉट यूज दिस इक्वेशन एट ऑल. ओके. जी सर. And then in the next part, examiner is saying solve by factorization. Factorization के दो मतलब हैं. पहला कॉमन निकालो या आइडेंटिटी देखो. कॉमन निकलता है नहीं, आइडेंटिटी बनती है नहीं. अब बारी आएगी मिड टर्म ब्रेक की. अब मिड टर्म ब्रेक के लिए गौर से जरा क्वेश्चन को गौर से देखें प्लीज. मिड टर्म ब्रेक के लिए आपने फर्स्ट और लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करना होता है. और मैंने आपको कैलकुलेटर के जरिए भी मिड टर्म ब्रेक करना सिखाया था, अगर आपको याद हो तो. ठीक है. रिवर्स मेथड में आंसर से क्वेश्चन की तरफ जाने के लिए मैंने आपको तरीका सिखाया था कि नहीं बेटा? 2 × 105 तो 210 आएगा बेटा. 210 के फैक्टर्स निकालने, ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 11 आ जाए. क्या आ जाए बेटा? 11 आ जाए. तो पहली बात तो ये है कि 210 के जरा बड़े बड़े फैक्टर्स निकालने की कोशिश करें ताकि आपको आइडिया हो. किसी को कोई आइडिया है कि क्या फैक्टर्स होंगे यहाँ पे? 21 and 10. वेरी गुड. अब बड़ा नंबर है ना, तो 21 × 10 is to 10, एंड 21 में से 10 माइनस करें, यू आर गेटिंग 11. So the question has a negative symbol. Thank you, Zoya. So 2x² - 105 = 0. Now I need +11, so I will be writing +21x and -10x because the sign of the greater should be positive. तो यहाँ पे इसीलिए मैंने पॉजिटिव लगाया है. सबको आना चाहिए कि प्लस क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे +11 था. ठीक है. ओके. नाउ x is common, तो यहाँ पे x कॉमन आ गया तो अंदर क्या आएगा बेटा? x कॉमन हुआ तो अंदर क्या आएगा बेटा? x + 21 माइनस, अच्छा माइनस भी कॉमन लेना है क्योंकि 10 और 105 5 के टेबल में आते हैं, तो -5 को कॉमन लेता हूं तो अंदर आ जाएगा. सर तो 2 कहाँ गया? ओके आपने x कॉमन ले लिया. ओ यस, वेरी गुड, थैंक यू. 2x + 21. ठीक है जी, थैंक यू. ओके. -5 को कॉमन लेने तो अंदर आ जाएगा 2x + 21, क्योंकि 5 × 21 is 105 = 0. आपकी ब्रैकेट सेम आनी चाहिए. Now the bracket is common, 2x + 21 and x - 5 is the leftover. So we are going to solve this. So we have this much working space available. Be careful. जहाँ पे working कम हो पेंसिल से अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है, क्या गलती ना हो जाए किधर. तो now 2x + 21 = 0 and the second answer is x - 5 = 0. X is equals to +5, my first answer. 2x is equals to -21. X is equals to -21/2. तो -21 divided by 2 कितना होता है? -10.5. Second answer for 3 marks. Now just tell me one thing. Can I have the value of x negative? No sir. Why? Because x cannot be negative. The reason is because if I put -10.5 here, so -10.5 + 3 is -7.5 and length cannot be negative. So this answer is irrelevant. We are going to use this answer in the next part. Let's see. Calculate angle ACB. ACB. So first of all, first step, draw the triangle outside. Okay. So A, that is C, and that is B. ये 90 का एंगल है बेटा. अब x + 3, 5 + 3 बेटा 8 आता है. अब x की जगह पे मैंने 5 डालना है, तो यहाँ पे मैं 5 डाल देता हूँ. 2 5s are 10, 10 + 5 is 15, और ये 8 आएगा, तो यहाँ पे आ गया 15. ओके मेरा बेटा ACB का मतलब है कि ये एंगल निकालो. ओके. Side opposite to the angle is called perpendicular and this is your adjacent or base. So tangent theta जो है most probably इस्तेमाल हो जाएगा, tangent theta. So tangent C is equals to perpendicular, which is 15, and the base is 8. So C is equals to tangent inverse of 15/8. So C tangent inverse of 15/8 कितना आता है बेटा? 61.927. 61.927. Thank you for such long answer. Now 1 decimal place for the angle. So 61.9 degrees is the final answer. I hope all of you got the idea. Yes or no? Yes, sir. All right, proceeding.
triangle ABC is similar to triangle DEF. Okay, just wait a minute. Triangle ABC, it is similar to the triangle DEF. So let me just draw the triangle ABC one more time. ABC जल्दी जल्दी बनाता है, ठीक है? ये कहता है ये सिमिलर है, ये 8 है, ये 15 है और इसका एरिया 60 था, ठीक है? ये नजर आ गया आपको ऊपर 60 अरसलान? And Sir. it is similar to triangle DEF. तो ये DEF के सिमिलर है, तो मैं कहता हूँ ये DEF है, ओके? Okay, sir. ट्राइंगल DEF का बेटा एरिया है 93.75, ठीक है बेटा? Okay. कहता है फाइंड द साइज ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ ट्राइंगल DEF. बेटा जब सिमिलर होते हैं ना तो एंगल सेम होते हैं, तो हमारे पास एंगल ACB आया था 61.9 आया था, एग्री? तो ये एंगल निकाल लो, एंगल B, एंगल B निकालना बेटा. Sir, 28.1. It is 28.1, so the smallest angle would be 28.1 because in similarity the angles remain same. ये एंगल 28.1 है तो ये भी 28.1 होगा. सिमिलरिटी में साइज बड़ा छोटा होता है, एंगल सेम रहते हैं, ठीक है? 90 से माइनस करेंगे, 61 नहीं बेटा 61.9 माइनस करेंगे, प्लीज हसन. आई होप इट्स क्लियर नाउ. Now they are saying find the length of the shortest side. Okay, so the shortest side would be ED because here the shortest side is 8. यहाँ पे 8 shortest side है तो वहाँ पे ED होगा, तो हमें वहाँ पे निकालना है. तो हमारे पास फॉर्मूला है A1 divided by A2 is equals to L1 divided by L2 whole square. That is what my formula is. Area of the unknown shape is 93.75, इसीलिए इसको ऊपर लिखा, नीचे वाला 60 है. L1 उसकी नहीं है मेरे पास, तो मैं यहाँ पे L1 लिख देता हूँ और L2 की जगह पे मैं लिखूंगा 8 और ऊपर लिख दूंगा स्क्वायर. क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग लेते हैं. तो देखो बेटा 8 डिवाइड, या देखो अननोन डिवाइड बाय 8 एंड 93.75 डिवाइड बाय 60 और साइड्स के ऊपर स्क्वायर आएगा बिकॉज एरिया इज अ स्क्वायर क्वांटिटी. अब जी स्क्वायर को ओपन कर लें तो 93.75 divided by 60 is equals to L1 square divided by 8 square. 8 square को 93.75 के साथ लिख दें, multiply with 8 square divided by 60 is equals to L1 square, taking square root on both sides. So left side पे square root, right side पे square root कटा, right side पे कुछ नहीं कटेगा. Press square root, fraction button, put everything inside and boom, answer. चलें जी. Sir, 10 आ रहा है. 10.111. Can you please repeat यार? 10.11. Okay, so L1 is 10.11. Okay, और किसी का कोई और आ रहा है? मेरे पास 10.1 पे राउंड ऑफ कर रहा हूं मैं. जी डन. अवनीश डन. Sir, done. वेरी गुड. लालूना, रामीन, रानिया, सर यमुना, यहाँ पे तो जया. सिर्फ 10 है, जी सिर्फ 10 है. आपके पास सिर्फ 10 आया है, Sir, मेरे जी पास भी सर. सिर्फ 10 आ रहा है. फिर 10.1 किसके पास आ गया? अगर सिर्फ 10 आ रहा है तो इसका आंसर 10 होगा. अरुण, व्हाट इज द आंसर यू गॉट? Sir, सिर्फ 10. सिर्फ 10 चैट में भी मुझे आ गया है, एक दो बच्चों ने बता दिया. गुड जॉब. चलें जी आगे चलते हैं जी. अल्लाह अकबर. चलें जी. स्टेटिस्टिक का क्वेश्चन. बेटा हमने आपने कल ये क्वेश्चन पूछा, तो काइंडली जरा प्लीज गौर करें कि ऐसे क्वेश्चन में आप फंस रही हैं, तो मैं आपको जरा थोड़ा सा इसमें से निकाल दूं. द टेबल शोज इन्फॉर्मेशन अबाउट द हाइट ऑफ 80 चिल्ड्रंस. इट इज अ कॉन्टिन्यूअस डाटा. कॉन्टिन्यूअस डाटा क्यों है? क्योंकि बेटा यहाँ पे 1.2 और 1.4 लिखा हुआ है एक ही टेबल के अंदर. मतलब हाइट इज ग्रेटर देन 1.2 बट लेस देन और इक्वल टू 1.4. दिस इज फ्रीक्वेंसी. राइट डाउन द इंटरवल कंटेनिंग मीडियन टाइम. सो मीडियन टाइम, the table shows information about the 80 children. 80 children का मतलब ये है हमना that total frequency is 80 and it is an even number. Okay, and for even number we have the formula for the median is n over 2, which is 80 by 2, which is the 40th child. 40th child is your median. That is not your answer. You will not get 1 mark for that. Okay, for that what I'm going to do is I'm going to write CF here. हमें CF find करना है. Write first one as it is. Arsalan 2 plus 13 15, 15 plus 24 बेटा 39, 39 plus 32 कितना आता है? 71. 31. 71 and 71 plus 9 is 80. So the 40th child, Hamna, can you please turn on your mic? 40th child would be here. Agree or not? Yes or no? जी सर. All right.
So I got the median class, which is 1.65, which is 1.65, and this is 1.8, 1 mark for that. Now after that, we are going to find out the estimate of the mean. So what I'm going to do is I'm going to remove this CF line from here. मैं यहाँ से CF line मिटा दूंगा, और अगर आप रहने भी देते हैं तो आपने कलर चेंज कर देना यहाँ पे, अच्छा कि कंफ्यूज ना हो जाए. So mean is equals to summation fx divided by summation f. अरसलान मिड पॉइंट्स निकालने हैं, तो मिड पॉइंट्स ऑफ 1.2 and 1.3 क्या होगा? 1.4. जी सर. Sir, 1.3. 1.3 is the midpoint. 1.4 और 1.5 का midpoint is 1.45. 1.5 and 1.65 का midpoint is 1.6. Am I right or not? ये कितना आ रहा है? 1.5 plus 1.65. Decimal में करके हो यार. Sir, 1.575. 1.575. Thank you. 1.65 and 1.8 का midpoint. Add them and divide by 2. That's what the simple thing is. अरसलान add करके divide by 2 करो. जी. 1.725. 1.725 and the last one is 1.85. That's easy. Okay. अब देख लें जरा रामीन, पहला भी इजी था, दूसरा भी इजी था, ये दोनों थोड़े ट्रिकी थे. एग्री? जी सर. यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने नंबर कटवाए होंगे अपने, तो बी केयरफुल. ठीक है. नाउ एफ एक्स निकालना है. एफ एक्स निकालने के लिए यहाँ पे एक रो बनाते हैं. इसका मतलब है आपने इसको 2 के साथ, इसको 13 के साथ, इसको 24 के साथ, इसको 32 के साथ और इसको 9 के साथ मल्टीप्लाई करना है. ये 80, 39 और 79 को इग्नोर करना है. ये CF है, इट्स नॉट फ्रीक्वेंसी. Total there are 80. Hamna. So before doing that, I'm gonna write multiply with 2 plus 1.45 multiply with 13. Be careful. Values दिखते वक्त गलती ना होनी चाहिए. 1.575 multiply with 24 plus 1.725 multiply with 32 plus, and the last one is 1.85 multiply with 9 and whole divided by 20. Okay, 80, sorry. So now अब यहाँ पे एक मोस्ट कॉमन एरर हो सकता है पेपर में कैलकुलेशन का, तो बी केयरफुल. आपने बड़ा केयरफुली इसको कैलकुलेटर में डालनी है. आप एक एक ब्रैकेट को अलग-अलग भी कर सकते हो, क्योंकि ये गिफ्ट मार्क्स हैं, ये जाने नहीं चाहिए. तो बताइएगा जी, न्यूमरेटर में आंसर क्या आ रहा है? व्हाट इज द आंसर इन न्यूमरेटर? सर टोटल बताओ या सिर्फ ये जो किए हुए हैं? टोटल बता दें बस. 131.1. 131.1 डिवाइडेड बाय 80. उसका 1.63875 आ रहा है. 1.63875. हम ना बेटा एक चीज हमेशा याद रखें, वी डू नॉट राउंड ऑफ मीन. हम मीन को कभी भी राउंड ऑफ नहीं करते, बिकॉज मीन इटसेल्फ इज एन एवरेज, तो हम उसको राउंड ऑफ नहीं करते. तो 1.63875 इज योर फाइनल आंसर फॉर 4 मार्क्स. 4 नंबर हैं. बी केयरफुल. कहाँ पे मिलेंगे 4 नंबर? पहले मिलेंगे एग्जामिनर ने अगर आपका ये वर्किंग देख लिया, समेशन एफ एक्स डिवाइड बाय समेशन एफ, ये वर्किंग अगर आपका स्टेप ठीक है, इस स्टेप का 1 नंबर है. फाइंडिंग मिड पॉइंट्स को भी फाइंड करने का नंबर है. ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है. प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन राइट टिल द वेरी एंड. आखिरी लिमिट तक उसको सॉल्व करने की कोशिश करना. ठीक है. ओके, चलो आगे चलिए. one of these children is chosen at random. 80 बच्चों में से 80 चिल्ड्रन में से एक बच्चा पिक किया है, तो समथिंग आउट ऑफ 80 है. ओके, 80 में से सिर्फ एक पिक किया है. कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट दे हैव हाइट of 1.4 meter or less. Okay, look at the table please. 1.4 meter or less वाले ये बच्चे हैं, ये वाले तो नहीं आते, ये तो आउट हो गए. तो there are only two students, so it's 2 out of 80. क्या हमें सिंप्लीफाई करना चाहिए? क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ कि सिंप्लीफाई करो, तो कोई जरूरत ही नहीं है. तो आप लिख सकते हो 2/80 और 1/40. अगर कोई आप में से कैलकुलेटर में करे तो ये आंसर 2/80 और 1/40 आएगा. ठीक है जी, क्लियर है सबको? आयला, इज दिस क्लियर टू यू? Yes, friend. ऑलराइट. 2 of these children are picked at random. अब 2 बच्चे उठाए हैं. डेफिनेटली विदाउट रिप्लेसमेंट का केस होगा. जब एक बच्चा उठाऊंगा तो वहां पे 79 रह जाएंगे, जब दूसरा बच्चा उठाऊंगा तो पे 78 रह जाएंगे. लेकिन इन्होंने 2 बच्चे उठाए हैं, तो 78 और 79 वाला केस होगा. ओके, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर टॉलर देन 1.5. ओके, दोनों टॉलर हैं, तो पहले जरा देखते हैं. टॉलर then 1.5 are how many? Taller than 1.5 are how many? तो taller than 1.5 are 24, 32 and 9. तो बेटा 24, 32 and 9 कितने होते हैं? 65. 24 plus 32 plus 9 is 65. कि दोनों बच्चे जो हैं
वो 1.5 मीटर से उनकी लेंथ हाइट उनकी ज्यादा है, बट ओनली वन ऑफ देम इज टॉलर देन 1.8 एंड टॉलर देन 1.8 कितने हैं? टॉलर देन 1.8 कितने हैं? यमुना तुमने प्रोबेबिलिटी अभी किया ना? टॉलर देन 1.8 कितने हैं बेटा? टॉलर देन 1.8 सिर्फ 9 लोग हैं। कितने लोग हैं? सिर्फ 9। नाउ you have to pick 2 children out of 80. The first one should be from here and the second one should be from here, but the order is not clear. This can be first and this can be second. So that is what the trick is. Rest the question is done. So calculate the probability that both children are taller than 1.5 meters. 1.5 meters से ऊपर हैं, but only one of them is taller than 1.8 meter. तो अब याद रखें कि आपको ये आइडिया क्लियर हो जाना चाहिए कि टॉलर देन 1.5, पहले आप ये भी लिख सकते हैं कि 65 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई विद 9 डिवाइडेड बाय 79 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई विद 65 डिवाइडेड बाय 79। जी, सबको इस चीज की समझ आई है कि नहीं? बिकॉज द ऑर्डर इज नॉट क्लियर। ऑर्डर आपके पास क्लियर नहीं है, यस और नो? जी सर। जरा एक मैसेज आ रहा है जी, आप लोग देख लें जरा प्लीज, एक मिनट और करें। ओके डन। अच्छा, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रंस आर टॉलर देन 1.5, कि दोनों 1.5 से टॉलर होने चाहिए, बट ओनली वन ऑफ देम इज टॉलर देन 1.8। अच्छा, वन ऑफ देम इज टॉलर देन 1.8, तो इसमें एक चीज की एक ट्रिक है, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम दैट। ये दोनों 1.8 से ज्यादा आ रहे हैं, तो यहाँ से जरा माइनस करें। 65 माइनस 9, 65 माइनस 9 इज हाउ मच? 65 माइनस 9 इज 56 56। तो रामीन यहाँ पे ये वाला टॉलर नहीं हो सकता, पहले वाला। अच्छा, जी सर। ये हमें यहाँ पे लिखना है 56 और यहाँ पे भी आ जाएगा 56। चलें जी, 56 मल्टीप्लाई बाय 9। जी वाज अबाउट टू से दैट। ओके, अब ये देखें जी, 56 मल्टीप्लाई बाय 9। अब ये कैलकुलेटर वर्जन क्वेश्चन है, शो ऑफ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ब्रैकेट का इस्तेमाल करो और क्वेश्चन में फाइनल फ्रैक्शन निकाल लो। बताओ फाइनल फ्रैक्शन क्या आ रही है? फाइनल फ्रैक्शन क्या आ रही है? हसन, यहाँ पे बेटा उन्होंने कहा था कि बोथ आर टॉलर देन 1.5, 1.5 से बड़े होने चाहिए दोनों। देख लो 56 प्लस 9 जो है ना 65 आ रहा है, ठीक है? Sir, एंड वन ऑफ 60. देम इज 9, ओनली वन ऑफ देम इज टॉलर देन 1.8। तो ये 1.8 से बड़े हैं लेकिन ये 1.8 से छोटे हैं, लेकिन इनकी भी हाइट 1.5 से ज्यादा ही है, ठीक है? 63 by 395। समवन प्लीज रिपीट वन मोर टाइम। 63 by 395। 63 by 395 is the final answer। 63 by 395। फ्रैक्शन को कभी भी डॉटेड लाइन पे लिखना है ना, तो उसको बिल्कुल जरा इसके कोशिश करनी है कि ये फ्रैक्शन आपकी आंसर लाइन के ऊपर आए, ठीक है? आंसर लाइन के नीचे नहीं, ठीक है जी? चलें जी, आगे चलते हैं। अच्छा, कंप्लीट द फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द हाइट। तो CF हमने निकाले थे, याद है रमीन? वो ब्लैक वाले हमने लिखे हुए हैं ना? जी सर। 2 15 39, 2 15 39 71 और 80। ओके, तो 2 मार्क्स मिल गए हमें। अब वो कहता है कि ऑन ग्रिड इसको प्लॉट करो। तो 1.4 पे, यमुना मेरी आवाज आ रही है बेटा? 1.4 is 2, तो 2 बेटा यहाँ पे होगा, क्रॉस लगाएं। 1.65 is 15, तो 15 जो है वो 20 और 10 के दरमियान में होगा, क्रॉस लगाएं। 1.65 is right here, तो 1.65 is 39, तो 40 से थोड़ा सा नीचे लगा दें क्रॉस। 1.8 is 71, तो ये हो गया 60, 70, 71 is 70 से थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। एंड 1.9 is 80 एट द वेरी टॉप। अच्छा जी, अब आपने यहाँ पे एक कर्व ड्रॉ करनी है। इट शुड बी हैंडमेड कर्व होनी चाहिए, रूलर नहीं इस्तेमाल करना, ठीक है? कोशिश करें क्रॉस टू क्रॉस जाएं। कोशिश करें क्रॉस टू क्रॉस जाएं ताकि कर्व आपकी प्यारी सी बने, ठीक है जी? अब माज अगर मुझसे बच्चे पूछते हैं कि सर क्या हमें ये कर्व यहाँ पे ज्वाइन करनी चाहिए, बेटा कोई ज़रूरत नहीं है ज्वाइन करने की, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपने आंसर ऊपर ही लगाने हैं, ठीक है? 3 मार्क्स।
यूज द डायग्राम टू फाइंड आउट द एस्टिमेट ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होती है बेटा? अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल इज बेटा 75%। 75% को मैथ्स में 3/4 बोलते हैं, तो इट इज 3/4 ऑफ 80। तो 3/4 ऑफ 80 कितना आता है बेटा? 60th वैल्यू। एंड लोअर क्वार्टाइल इज 1/4, मतलब 25%। 25% ऑफ 80, तो 1/4 ऑफ 25 इज द 20th वैल्यू। ओके यमुना, 60th बच्चा और 20th बच्चा कर्व के साथ हिट करना है। पेपर में भी बेटा हवा में नहीं करना, यहाँ पे रूलर रख के इस लाइन को हिट करना है एग्जामिनर के लिए। यहाँ पे नीचे ला के एक एरो लगाना, एस्टिमेट करो वैल्यू 1.54 आ रही है, इधर लिख देना कि ये मेरा LQ है, मतलब लोअर क्वार्टाइल। ठीक है, अच्छा जी। 60th वैल्यू को बेटा यहाँ पे हिट करें कर्व के साथ। अयान, जब हिट हो जाए कर्व के साथ, जो आंसर आपका आ रहा है आप वो लिखो, दूसरों का नहीं, अपने आंसर पे गौर करो। मेरे पास यहाँ पे आ रहा है 1.75। ठीक है जी, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया अपर क्वार्टाइल। ओके, अब इसको माइनस करना है, अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल, तो ये फर्क है बेटा। 1.75 माइनस 1.54 कितना आता है? 0.21. 0.21 इज द आंसर। अब ये याद रखें, इट इज एन एस्टिमेट। हर एक बच्चे का आंसर डिफरेंट होगा, लेकिन रेंज होता है तो उसी रेंज में आपका आंसर फॉल करना चाहिए। ठीक है, फाइंड द 60th परसेंटाइल। 60th परसेंटाइल का क्या मतलब है? 60%। 60% ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी, तो 60% ऑफ 80, 00 कटा, 00 कटा, 6 8 48 चाइल्ड आ रहा है। हम ना, समझ आ रही है बेटा? 48 चिल्ड्रन। सो 48 चिल्ड्रन जो है वो आपको कर्व पे मिलेगा। सो 48 को अब हिट करूंगा तो 50 से एक बॉक्स नीचे जो है वो 48 आएगा। तो जस्ट हिट इट एंड जस्ट गो डाउन। इट्स 1.69, ये 1.69 आ रहा है मेरे पास आंसर। इट्स 1.69। दो नंबर है रामीन, एक इसका भी एक नंबर है। ठीक है, अगर जी आपने सर। ये फाइंड किया है तो इसका भी एक नंबर है। ठीक है, जी सर। ओके चलें जी। क्वेश्चन हो गया स्टार्ट पे खत्म, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मेंसुरेशन। द कोन हैज अ डायमीटर 8 एंड परपेंडिकुलर हाइट 15। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द कोन। फॉर्मूला इज गिवन। 1/3 pi, radius of the cone is 4 because diameter is 8, 4 square, and the height is 15. So just tell me what is the answer, beta. Just tell me what is the answer. Sir, 251.3. 251.33 के बाद बताओ ना बेटा, आंसर स्टॉप नहीं करो ना डायरेक्ट। चलो ना यार, क्विक। Sir, 327. 327, दैट्स इट। तो अब आंसर लाइन पे हम लिखेंगे 251। ठीक है, ओके। A label completely covers the curved surface area of the cone. Calculate the area of the label as a percentage of the total surface area of the cone. So let's find out the curved surface area of the cone. So we know this already. हमें पता है कि कोन के अंदर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, और राइट एंगल ट्राइंगल जो है हमारे पास कुछ इस किस्म का होता है। लालूना कैन यू हियर मी? Okay, so this is 4 जी centimeter सर। and this is 15 centimeter. Let's find out L here. हमें L निकालना है यहाँ पे। So L is equals to square root of 15 square plus 4 square. What is the value of L बेटा? Square root में आंसर बता दें बेटा। What is the value of L? Pythagoras theorem है। चले जी, 225 plus 16 is square root 241. जी sir. Okay, square root 241 is the slant length of the cone. कहता है label completely covers the curved surface area of the cone. So curved surface area of the cone is pi RL. सरफेस लिखा भी हुआ है फॉर्मूला, पाई आर एल। तो पाई रेडियस इज 4 एंड एल इज स्क्वायर रूट 241। तो जरा बताएं कर्व सरफेस एरिया कितना आ रहा है? Sir, 195.08. 195.08। ओके, ये राउंड ऑफ नहीं करना है। अच्छा, ये दैट इज कर्व सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द लेबल एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। अब जरा टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। टोटल सरफेस एरिया वुड बी इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व। तो जरा करके बताएं बेटा क्या आ रहा है टोटल सरफेस एरिया? टोटल कितना आ रहा है बेटा बताएं? पाई 4 स्क्वायर मतलब 16 पाई प्लस 195.08। अरोम, टेल मी योर आंसर्स यार, व्हाई यू आर सो साइलेंट? 245.345. 45 point
345. 345. ओके, कैलकुलेट द, अब वो कहता है ये कितना परसेंट है, तो हमें परसेंटेज निकालनी है। तो यमुना 195.08 डिवाइडेड बाय 245.345 मल्टीप्लाई विद 100, जरा करके देखें दिस इज हाउ मच परसेंट। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द लेबल एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, और एरिया ऑफ द लेबल क्या था, कर्व सरफेस एरिया था। 79.512. दोबारा बोलना, 79.512। 512. बेटा मैं कैलकुलेटर खुद भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, मेरे पास टेबल पे यहाँ पे 4-5 कैलकुलेटर पड़े हुए हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस्तेमाल करो ताकि आप लोग क्लास में एंगेज रहो। ठीक है, चलें जी आगे चलते हैं जी। पार्ट बी। It's a cylinder. An empty cylindrical container has a 0.45 meters and 30 liters of water is poured into the container at a rate of 375 ml per second. Find the time taken in minutes and seconds for all the water to be poured in the container. कि तमाम का तमाम पानी उस कंटेनर में आ जाए। वो कहता है कि 300 लीटर पानी है, उसको पोर किया गया है इस कंटेनर के अंदर, और 375 ml पर सेकेंड के हिसाब से हुआ है। कहता है फाइंड द टाइम टेकन इन मिनट्स एंड सेकंड फॉर ऑल द वाटर टू बी पोर्ड इन द कंटेनर, ताकि तमाम का तमाम पानी जाए उसके अंदर। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा कैलकुलेटर को ओपन करूँगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एक ट्रिक सिखानी है, क्योंकि कैलकुलेटर पे टाइम बटन ऑलरेडी मौजूद है, तो हमें इतना फटीक लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़रा प्लीज़ ज़रा गौर करें बेटा। मेरी स्क्रीन शायद आपको कैलकुलेटर नज़र नहीं आ रहा, तो मिरर एंटायर स्क्रीन, यस नज़र आ गया कैलकुलेटर। अब ज़रा गौर करें बेटा प्लीज़। कहता है कि एन एम्प्टी सिलिंड्रिकल कंटेनर हैज रेडियस 0.45 मीटर्स, 300 लीटर ऑफ वाटर इज पोर्ड इनटू द कंटेनर एट अ रेट ऑफ 375 ml पर सेकेंड। सो बेटा 300 लीटर्स दे आर इक्वल टू हाउ मच ml, कितने ml हो गए, मल्टीप्लाई विद 1000, तो 300,000, दिस इज हाउ मच mls। एग्री, एग्री बेटा, एग्री बेटा। जी सर। This is how much total milliliter water available is. Now they are poured into the container at a rate of 375 ml per second. So let's divide by 375. Let's divide by 375. 3 lakhs divided by 375. So calculator please. 3 lakhs divided by 375. So the answer is 800. Answer is what? 800 seconds. Okay, now 800 seconds, I'm not interested. I know that 800 seconds, it will have definitely what? It will have some time. So let me check that. I will write 800 divided by 60 to check how many minutes are there. It's 40 by 3. So let's press the time button. तो time button is E and G के ऊपर वाली जो कॉमा लगे है ना, ये time button है। तो मैं जैसे ही इसको प्रेस करूंगा ये मुझे दे देगा 13 minutes and 20 seconds divided by 60. ये मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ। तो 800 को डिवाइड बाई 60 किया तो 40 by 3 आया था। नाउ प्रेस टाइम बटन। टाइम बटन क्या है आपके पास, कैलकुलेटर में ये बटन होता है, ये मिनट का सिंबल, ये आवर का, ये मिनट का, और 2 कॉमर्स आर सेकेंड्स। तो जब आप इसको प्रेस करेंगे तो ये आपको बता रहा है 13 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स। तो यहाँ पे आ गया 13 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स, 3 मार्क्स। ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर देना है। सेकेंड 21 हुआ ना तो नंबर कट जाएगा, एक नंबर कटेगा। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द वाटर इन द कंटेनर, कंटेनर में वाटर की हाइट कितनी होगी। आई गॉट द आइडिया हेयर दैट अरोम दिस इज माई सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर वुड बी 300 liters. Agree? 300 liters means we know that कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है इट इज 3 lakhs सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा। एग्री? So now we got the idea that the height of this is missing. We have the radius which is 0.45. Let's find out by using the volume formula. Volume is equals to pi r square h. Volume is 3 lakhs. Pi radius is 0.45 and the height is missing. So left right hand side पे जो भी multiply हो रहा है वहां पे ले जाके divide कर दें। तो 3 lakhs divided by pi into 0.45 and that is equals to h. तो fraction 3 lakhs divided by 0.45 and shift and pi. Pi को आंसर लिखना जरूरी है, equal. So it is height is equals to, height आ रही है मेरे पास 212,206.5908। यार ये क्या हो गया, ये कुछ गलत किया हम लोगों ने।
कि मैंने कैलकुलेटर में गलत सेंटीमीटर क्यूब को में क्यों कन्वर्ट किया, मीटर क्यूब में नहीं कन्वर्ट करेंगे? क्यों? ओ यस, इसमें मीटर क्यूब लिखा हुआ है, सॉरी, माय बैड माय बैड माय बैड। तो हमें मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है इसको, तो हम लोगों ने इसको सेंटीमीटर क्यूब में गलती से कन्वर्ट कर दिया था। अच्छा यहाँ पे याद रखें, ये क्वेश्चन में बेटा यहाँ पे देखिए मीटर लिखा हुआ था, ठीक है, तो इसको हमें मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना, तभी मेरे पास आंसर बहुत बड़ा आ गया, इतनी बड़ी हाइट तो हो नहीं सकती। गुड जॉब, थैंक यू। चलें जी, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, हमें इसको ज़रा कन्वर्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ मेरे पास यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, यहाँ पे दूसरा दिखा देता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ स्केल्स भी सिखा देता हूँ थोड़ा सा, एक चीज़ ज़रा अंडरस्टैंड करें ज़रा थोड़ा सा, ठीक है। ये वैसे मैंने याद करवाया भी था, ठीक है, आपको मैंने याद कराया था कि 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर्स होते हैं। 1 liter. व्हाट? 1. कम ऑन यार, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मच लीटर्स, मैंने ये बताया था आप लोगों को। 100. गलत, 1000। इट्स 1000, And इट्स 1000 लीटर। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इट इज इक्वल टू 1 लीटर, एंड 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। ओके, तो अब मुझे 300 लीटर को कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 300 लीटर विच इज इक्वल टू एक्स, विच इज इक्वल टू एक्स। तो मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर रहा हूँ इसको, तो 1000 x इज इक्वल टू 300, सो x इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 1000, सो ये कितना आएगा साइन? 3/10 is 3. 3.3 आएगा. That is what the 0.3 is volume. So 0.3 is equals to pi and the radius is 0.45 and the height is missing. Height क्या है बेटा आपके पास? Missing है। अच्छा वैसे पहले भी हमारा क्वेश्चन जो है ना वो सही हो जाना चाहिए था, रीज़न उसका क्या था, क्योंकि शायद मैंने वहाँ पे स्क्वायर भी नहीं डाला था। 0.3 डिवाइडेड बाय 0.3 इंटू शिफ्ट इंटू पाई ब्रैकेट 0.45, ये मीटर में था, ऊपर आ गया स्क्वायर, सो द आंसर इज हाइट इज 0.47। मेरे पास हाइट आ रही है 0.47। जरा इसका आंसर जरा चेक करें यार, इसका आंसर ये ठीक आया कि गलत है, मुझे डाउट है सर ये जी। 0.471 यही आंसर। मेरे पास भी, हाँ जी मैंने मार्किंग स्कीम खोल लिया है, तो ये मेरे पास आंसर आ रहा है 0.472। अच्छा कैलकुलेटर में है 4715, तो हम पहले देखें सारा लिख लेंगे, अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ करते हैं, 3rd सिग्निफिकेंट इज दिस वन, तो आंसर हो जाएगा 0.472। 0.472 इज द फाइनल आंसर। डन, डन बच्चा। जी सर. चलें जी, सीक्वेंस है, a sequence has n term, n divided by 2n plus 3, find the first 3 terms of the sequence। तो n की जगह पे 1 डाल दें, कैलकुलेटर इस्तेमाल करें, 1 ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 प्लस 3, तो पहला टर्म आ रहा है बेटा 1/5, फर्स्ट टर्म इज 1/5। नाउ रिप्लेस n विद 2, सेकेंड टर्म निकालनी है अरसलान, तो n की जगह पे 2 डाल दो अभी, सो इट्स 2/7, एंड द थर्ड वन n की जगह पे अब 3 डाल दो, इट्स 1/3। क्या यही आ रहे हैं बेटा सबके? जी सर. ओके ओके, कहता है द kth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज 12/25, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपने ये निकालना है कि इसकी आंसर क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है आपके पास द kth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज दिस मच, n term of the sequence is given to you, ठीक है, the formula is given, ठीक है, so it means that n divided by 2n plus 3 it should be equals to 12/25। अब वो आपसे kth टर्म मांग रहे हैं, तो n की जगह पे k लिख दें, k divided by 2k plus 3 is equals to 12/25। क्रॉस मल्टीप्लाई करें बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 25k is equal to 12 into 2k plus 3, तो 25k is equal to 12 2s are 24k, 12 3s are 36, 24 वहाँ पे माइनस होगा, 25k minus 24k is equal to 36, 25 minus 24 is k and k is equal to 36, k is equal to what? 36, agree? The value of k is 36, understood? Understood or not? Understood or not? जी सर. ओके चलें जी, ये हो गया सीक्वेंस का क्वेश्चन। फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस, ये पार्ट बी है, इट हैज नो रिलेशनशिप विद पार्ट ए।
तो ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे, बाकी पेपर हम कल कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे हो रहा है बेटा 6 प्लस व्हाट, 6 प्लस व्हाट इज 13, 7. 7. it's 7, 13 plus what is 32, 32 minus 13 is 19, 69 minus 32 is 27. 27, 37. okay, Yeah, 30, 37, okay, next, 51. what, 51. 51, अच्छा। अब साइन यहाँ पे जरा एक चीज को गौर करें, It's 61. it's what, 61. thank you, it's 61, 61, okay, first difference is not same, let's find out the second difference now. So 19 minus 7 is 12, 37 minus 19 is 18. 37 minus 19 is 18, sir. 18. 61 minus 37 is 24. 24. okay. 24. Now it is plus 6 and this is plus 6. Third difference is same. It means that this sequence is what? It is a cubic sequence. Agree? Cubic sequence पढ़ाया था, कहा था कि थर्ड डिफरेंस को डिवाइडेड बाय कर लो, क्या डिवाइडेड बाय 6 करना है। तो थर्ड डिफरेंस डिवाइडेड बाय 6, तो 6 डिवाइडेड बाय 6 इज 1। तो हमारे पास आ गया 1n क्यूब। तो हमारे पास आ गया 1n क्यूब। तो टेबल लगा लेते हैं हम लोग, तो एक ट्राई भी कर लेते हैं यार। 1 क्यूब इज 1 एंड 1 प्लस 5 इज 6, 2 क्यूब इज 8, 8 प्लस 5 इज 13, फाइन। 3 क्यूब इज 27, 27 प्लस 5 इज 32, 4 क्यूब इज 64, 64 प्लस 5 इज 69। So I got the answer, n cube plus 5 is the answer. Agree, Saim? जी सही. So I got the idea, it's n cube. I know that 1 cube is 1 and 1 plus 5 is 6. N cube means 2 cube is 8. 8 वैसे सर plus 5 is 13. So the formula is n cube plus 5. जी अच्छा बात ये थी ना कि ये सारा लिखने की जरूरत है. हाँ, लिखने की जरूरत है ना, रट्टा तो नहीं लगाओगे ना यार, मैथ्स में रट्टा तो अगर नहीं नहीं वैसे सवाल है, अगर मुझे बस डायरेक्ट आंसर आ रहा हो तो जरूरत है टू ये मार्क्स सारे है ना, लिखने. 2 मार्क्स हैं तो 2 नंबर आपको इधर मिलेंगे। ये आपको इफ यू वांट टू गेट, इफ यू वांट टू अवॉइड द वर्किंग, जो कि आपको नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आपने एन क्यूब भी लिखा है ना तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है. अच्छा जी, दूसरा सीक्वेंस देखें क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग? Divide माइनस हो by रहा है. 2. डिवाइड बाय 2 हो रहा है, अच्छा सॉरी डिवाइड हो रहा है. हाँ डिवाइड बाय 2 हो रहा है। 100 डिवाइड बाय 2 इज 50। इसका मतलब है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है an इज इक्वल टू a1 मल्टीप्लाई विद r पावर n माइनस 1। एग्री? जी तो r जो है आपके पास डिवाइड बाय 2 है, तो इसका मतलब क्या है कि 1 बाय 2 लिखेंगे r की जगह पे। सो a1 जो है 100 है, 100 मल्टीप्लाई विद r इज 1/2 पावर n माइनस 1। ओके, क्या ये आंसर है हमारा? मेरे ख्याल में सर. आंसर नहीं सर. क्या करेंगे? और क्या करना है? 2 डिवाइड कर, 2 नीचे है तो 2 को ऊपर नहीं लेके जाएंगे. क्या करेंगे? 2 को ऊपर लेके जाएंगे शायद, पता नहीं, लेकिन ऐसे कैसे छोड़ देंगे. अब देखें ना जरा, थोड़ा सा गौर करें कि क्या ये हमारा फाइनल आंसर है कि नहीं। इंडिसेस में सर हमने एक रेसिप्रोकल जी बोले बोले हाँ सर, ये पावर नेगेटिव में नहीं है तो इसको पॉजिटिव करेंगे ना रेसिप्रोकल करके. अच्छा मेरा बेटा जरा गौर कर लें, जरा थोड़ा सा समझा रहा हूँ, ठीक है। पहली बात तो ये, आप आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, पहली बात, क्योंकि उन्होंने नहीं कहा कि सिंप्लीफाई करो, उन्होंने कहा फाइंड द एंड टर्म ऑफ ईच सीक्वेंस। अगर यहाँ पे लिखा होता ना फाइंड द एंड टर्म ऑफ ईच सीक्वेंस, तो फिर मैं सिंप्लीफाई भी करके देता। अब यहाँ पे ये क्या करने वाला हूँ, जरा प्लीज गौर करें यार। मुझे मुझे जो है ना अपने बच्चों से बड़ी अच्छी उम्मीदें होती हैं, ठीक है। और ये कौन है बेटा, ये जो जिसका डॉट डॉट से आप आए हुए हैं क्लास में, डॉट किसकी आईडी है? बेटा हर बच्चा कल से अपने नाम से आया करे, अदरवाइज मैं किसी को अदर नेम से नहीं छोड़ूंगा। चलें,
यहाँ पे जरा ये देख लें, इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है। an इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई विद 1 पावर n-1 एंड 2 पावर n-1। अब देखो जरा इस क्वेश्चन को जरा फ्लिप कर लें अगर, तो ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई विद 2 पावर प्लस n माइनस n प्लस 1। एग्री? माइनस n प्लस 1। और आपको पता है मेरा बेटा, आपको हानिया, एक चीज आइडिया है कि 1 विद 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही आता है। एग्री और नॉट? चाहे 0 हो, -1 हो, जो भी हो। एग्री? So that is what my final answer is, 100 multiplied by 2 power minus n plus 1, 2 marks। जी समझ आया बेटा सबको? हादी? सर मुझे समझ नहीं आया, आपने ये आगे कैसे किया, मुझे समझ नहीं आया। मेरा बेटा रमीन, ये r के ऊपर n पावर -1 नजर आ रहा है? जी इसका मतलब है r तो है ही हमारे पास 1/2 ना, डिवाइड बाई 2 रूल है हमारा, ठीक है? जी सर। तो n-1 मैंने 1 को भी दिया, 2 को भी दिया। एनी प्रॉब्लम? नहीं। मैंने क्वेश्चन को फ्लिप किया ताकि ये 2 ऊपर आ जाए, ठीक है? जी सर। तो नीचे n के साथ प्लस था तो ऊपर आके ये -n हो गया, ये -1 था तो ये +1 हो गया। एग्री? तो सर प्लस एन माइनस एन कट नहीं जाएंगे और -n प्लस -1 प्लस 1 कट नहीं जाएगा? क्या आप इन दोनों को काटना चाहती हो? जी। क्या हो गया बेटा, ये स्टेप यहाँ पे खत्म हो गया है, आपको क्या हो गया? ये तो यहाँ पे खत्म हो गया स्टेप। समझ आया? सर ये हम मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे? क्या मल्टीप्लाई नहीं कर रहे? 100 मल्टीप्लाइड बाई 2। क्या हो गया बेटा यार, ये दे आर नॉट लाइक टर्म्स, आप नहीं मल्टीप्लाई कर सकते इनको। 100 को 2 से मल्टीप्लाई करके 200 लिख दूं क्या? हाँ ना? क्यों? खैर तो है ना? जी बिल्कुल। नहीं कर सकते। आप मुझे बताओ जरा, एक चीज मुझे बताओ, क्या 100 मल्टीप्लाई विद 2 पावर x, ये आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो? सर आज पता चला कि नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हम लोग। हम यहाँ पे मल्टीप्लाई तब कर सकते हैं कि अगर x की जगह पे 2 स्क्वायर होता, ठीक है, नंबर होता कोई। ओके? ओके। सर एक मिनट मुझे समझाइए कैसे, ये आप 2 को ऊपर लेके गए ना और उसके बाद फिर ये जो नीचे प्लस एन मेरा था बेटा उसको मेरी ऊपर बात लेके सुनो, गए। मैं किसी को ऊपर नीचे नहीं लेकर गया। अब मेरी बात सुनो, तुम्हारी खातिर स्टेप कर रहा हूँ, जरा गौर करना। अच्छा ठीक है? मैंने यहाँ पे एक स्टेप स्किप किया ताकि मैंने कहा शायद समझ आ जाएगी, लेकिन आपको समझ नहीं आई। ये मैंने क्या किया है कि इन दोनों को फ्लिप किया है, नीचे वाले को ऊपर ले गया, ऊपर वाले को नीचे ले आया हूँ। एनी प्रॉब्लम? नहीं। तो ये इसके भी साइन चेंज हो जाएंगे ना, हो जाएंगे कि नहीं रामीन? हो जाएंगे। ओके, 1 की कोई भी पावर हो, आंसर 1 ही आता है। एग्री और नॉट? जी सर। तो इसीलिए नीचे वाला आंसर नहीं लिखा, बस ये ग्रीन वाला ही लिख दिया आंसर लाइन पे। अच्छा 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 ठीक है, पूरा स्टेप कर। ओके जी चलें जी, क्वेश्चन नंबर 7 ट्रिग्नोमेट्री है, क्वेश्चन 8 स्केचिंग ऑफ द कर्व है, और लास्ट में हमारे पास 2 क्वेश्चन रहते हैं। कल हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे पेपर, ठीक है? चलें, थैंक यू सो मच। टाइम लगता है क्योंकि पेपर 2 ज़रा बड़े होते हैं, तो उस पर वो 1 घंटे में ख़त्म नहीं होता। ओके सर, अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफ़िज़ सर। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।